Hi Mumtaj. Hello. Hello. Hi Dheer. How are you? Hi, Miss. I'm good. How are you? Good. I'm extremely. Hi, Miss. We are all joining from one phone because we're together, but the internet's very How weak, so we many? can't use. Okay. How many students are there, Dheer, with you? It's me, Aryan, and Rashi. Three. Okay. Okay. And where is Aryaveer? He must be joining, and Pushti also not there. Students, I have a small request. Please, can we just open our video? We can start a video, please. Dheer, Mumtaj. Miss, we can't switch on our video because we don't have good internet at all. We're not in Bombay, so. Okay, but at least for 2 minutes when we are having a introduction with Mumtaj. What, Miss? At least for 2 minutes you have to start a video. We have to have in one connect introduction with Mumtaj ma'am. She's there. Dheer. I guess Mumtaj उनका शायद internet issue है. Dheer, please can you start your video? कोई दिक्कत नहीं अगर उन्हें What, Miss? Please can you switch on the video for 2 minutes? We are having an introduction over here. Miss, we can barely hear you if we switch on internet. We won't be able to. You. Okay, no issue. Okay, no issues. Okay, I'll start with the introduction. I guess you have read about her on Google and news. She is a very prominent personality in social field. Her name is Mumtaj Sheikh. Her experiences are like kind of inspiration for so many people. Now she is a project manager in Coro India. Coro India, it's a NGO. They are working for a women leadership, child rights जैसे subject पे वो काम करते हैं, and past 35 years this NGO is existing and creating a different changes in the society. And मुमताज से बात करके आपको पता चलेगा कि importance of field work क्या है, research कैसे होता है, because इनका experience किसी भी रिसर्च पढ़ाने वाले टीचर से ज्यादा है. So she is like a kind of guys, today she's a kind of a treasure, knowledge of treasure for us. So please you're open to ask any question. Now I'm moving towards Mumtaj. Hi Mumtaj, thank you for joining us, and please share your experience related field work. And the students are basically doing the 1 month program for a documentary filmmaking. तो ये जो रिसर्च का पार्ट आता है या फील्ड पे कैसे काम करें, क्योंकि ये बच्चे अभी फील्ड पे शूट करने, बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करने जाने ही वाले हैं. सो आई होप योर एक्सपीरियंस वुड बी एड ऑन फॉर देम. सो हम एक पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. मुमताज,
आपने फील्ड वर्क कैसे किया, आपका परिचय हमें दीजिए प्लीज। शुक्रिया पूनम। हेलो ऑल स्टूडेंट। चाहती हूँ कि सबको देख सकूँ, लेकिन मुझे पता है कि टेक्निकल इश्यूज़ है, तो कोई बात नहीं। अगर मुमकिन हो तो हम एक दूसरे को चेहरे से देख पाए, ये कोशिश करेंगे। 1 घंटे का समय हमारे पास है तो। और अब आती हूँ पूनम के सवाल पे। तो मतलब मेरा जो सफ़र रहा है वो ऐसे कुछ सोशल वर्क में आना है या डेवलपमेंट सेक्टर में कुछ काम करना है, ऐसे रहा नहीं। मैं एक्सीडेंटली इस फील्ड में आई हूँ और अभी पिछले 20 सालों से काम कर रही हूँ। तो क्योंकि जैसे आपने कहा कि कोरो अलग-अलग इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, तो हम सारे जो लोग हैं कोरो में 95% जो लोग हैं वो सारे फील्ड से आए हुए लोग हैं, बस्तियों से आए हुए लोग हैं, गाँव में आए हुए लोग हैं, जो अपने-अपने गाँव के बस्तियों के सवाल छुड़ाने के लिए इकट्ठे आए हैं। तो क्योंकि मैं खुद ही फील्ड से आई हूँ, तो मेरा सारा काम जो है वो फील्ड वर्क में ही होता है कि कैसे बस्ती के जो सवाल है, मैं फ़िलहाल जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको कम करने के लिए फैमिली के साथ काम हमारा शुरू है। जो सोशल नॉर्म्स है उसको चेंज और चैलेंज करना, ये उसका मकसद है, ताकि फैमिली में डायलॉग बना रहे, ताकि फैमिलीज़ में महिलाओं के साथ होने वाली जो हिंसा है उसको रोक सके। और ये पूरा काम 14,200 फैमिलीज़ के साथ हम पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। हर एक जगह पे हमारे 1400 के हाउस होल्ड है, जिसके साथ हम अलग-अलग कैंपेन्स, मीटिंग, वर्कशॉप के ज़रिए लोगों तक पहुँचते हैं। और वहाँ से आने वाली जो भी हिंसा वाली केसेस है या फैमिली में कुछ डायलॉग करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे काउंसलिंग सेंटर के थ्रू होती है। तो ये थोड़ा-सा परिचय है। आप जैसे-जैसे सवाल पूछेंगे वैसे-वैसे हम आगे चलेंगे। ओके, धीर and other students, Aryan, hello. Yes, miss. Yeah, so guys, you have to ask a question, and because it's not a typical she's giving you a lecture, it's a question and session. So please ask question to her, and as well as related to your project, because Mumtaz ji, इन्होंने धीर and Aryan ने topic choose किया. They want to make a documentary on मीना कांबळे, जो सावित्रीबाई फुले महिला मंडल चलाती है, टॉयलेट के ऊपर काम उनका अच्छा है. So they chose a topic of Meena Kamble. And guys, please can you share your inputs? Have you talked to her, Meena ma'am, and how you're planning for documentary? So she'll help you with how to do a field work. Dheer, Aryan. Yes, miss. So we spoke to her last time, and we're meeting her next week. And we sent her the questions, and we're gonna go over those interview questions. Okay. So ask Mumtaz, how can you do a field work? फील्ड वर्क का एक नॉलेज किस तरीके से है, मुमताज जी हम जानना चाहते हैं. बच्चे जब भी फील्ड वर्क पे जाएंगे तो रिसर्च किस तरीके से करना है, सोशल बस्ती में जाके ये शूट करने वाले हैं, तो वहां पे किस तरीके से कम्युनिकेशन हो. प्लीज कैन यू गाइड देम फॉर दैट. श्योर। एक तो ये है कि आप बहुत महत्वपूर्ण काम आप करने जा रहे हैं सभी जो लोग हैं। डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाना ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों की कहानियाँ हम ज़्यादा ग्रासरूट के लोगों की कहानियाँ हम ज़्यादा लोगों तक उतनी ही इम्पैक्टफुल तरीके से पहुँचा पाए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना, उनके साथ लोगों के साथ जो फील्ड में काम करते हैं उनको जाकर देखना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है क्योंकि मैंने भी 2-3 फेलोशिप के प्रोग्राम में मेरे जो फेलोज़ थे उनको मेंटोरिंग की थी। हालाँकि मेरा डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाने का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जो अपने अनुभव से सीखा है वो मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। एक तो मुझे लगता है कि कुछ बातों की तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जब आप फ़िल्म बनाते हो।
एक तो है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी आपने लिया है, उसकी ज़रूरत क्या है, हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, हम किसके लिए करना चाह रहे हैं, इसमें से हमें हासिल क्या होगा, एज अ फिल्म मेकर हमें हासिल क्या होगा, और जो जिनकी हम स्टोरीज बनाने जा रहे हैं या जिनके साथ हम काम करने जा रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा क्या होगा। दोनों तरीके से कि जब हम कोई भी हमारा प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो भी हम फिल्म तैयार करते हैं, तो हमारी अपेक्षा क्या है उस फिल्म से, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि बहुत बार ऐसे होता है, आई एम श्योर कि आप लोग ऐसे नहीं करते होंगे, लेकिन जब भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती है या कुछ भी फोटोशूट भी कम्युनिटी में होता है, तो जो आने वाले लोग होते हैं वो अपने अजम्पशन साथ में लेकर आते हैं, और बहुत बार इस तरीके का बर्ताव होता है कि कम्युनिटी के लोगों को कुछ समझता नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, जो सारा नॉलेज है वो हमारे पास है। तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि कम्युनिटी में से जो लोग होते हैं वो काफ़ी जानकार, काफ़ी नॉलेज फुल होते हैं, जो आपको आगे चल के बहुत सपोर्टिव होंगे। तो अगर कुछ भी अजम्पशन है तो प्लीज़ पहले से शेयर कीजिए अपने गाइड के साथ, या आप जब जिनके साथ भी काम करने वाले हो उनके साथ। दूसरा कि 5 सवाल होते हैं ना, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। कुछ भी काम करने के लिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं, अगर आप फील्ड में भी जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या करने वाले हो, ये 5 क्यों जो है वो साथ में रखने की बहुत ज़रूरत है। जितना रिसर्च आप करोगे, जितनी पहले से जानकारी आप लोगे, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी, बहुत मायने रखेगी, ताकि आप जो भी काम करने वाले हो उसके साथ न्याय कर पाए। क्या न्याय को क्या कहते हैं कि उसको Justice. जस्टिस दे पाए, और उससे आपको भी सपोर्ट मिले जो आप करने वाले हो। तो वो एक है। दूसरा कि आप जिन भी कम्युनिटी में जा रहे हो, क्योंकि अभी आपने मीना जी का नाम लिया है, तो उसी से जुड़ कर कि वो घाटकोपर जैसे इलाके में है, तो मुंबई का ऐसा एक इलाका कि जो अभी भी बहुत ही Underdeveloped है. झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला है, अंडर डेवलपमेंट है, और वहाँ पे एज अ महिला, एज अ लेडी, वो टॉयलेट चला रही है, वो पूरे मुंबई भर के जो भी टॉयलेट चलाने वालों का संगठन है उसकी प्रेसिडेंट है, तो उसकी लाइफ स्टोरी क्या होगी, उसने ये काम क्यों चुना होगा। क्योंकि ऐसे भी देखा जाता है कि बहुत बार टॉयलेट चलाने वाले या टॉयलेट साफ करने वाले किसी एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं, या तो वो दलित होते हैं या वो मेहतर समाज के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें बहुत ध्यान में रखनी होगी कि हमेशा से इस कम्युनिटी को इन्हीं तरीकों के जिसको गरिमा वाला काम नहीं कहा जाता है, जिसको रिस्पेक्ट वाला काम नहीं कहा जाता है, इस तरीके का वो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए रोज़ के लिए वो चीज़ें ज़रूरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप जाओगे और लोगों से बात करोगे, मीना जी से बात करोगे, उनकी जो बाकी की टीम है उनके साथ बात करोगे, तो बहुत अच्छा होगा। आपका डेस्क क्या कहते हैं कि रिसर्च पहले होना चाहिए, ताकि आप जब उनके पास जाओ तो पूरी तैयारी से जाओ। पूनम, आप म्यूट पे हो। Sorry. Okay. Veer and Aryan, have you started doing your research? Veer, Aryan. Okay, maybe Hello, they're miss, we not. couldn't hear you. Yes. Hello? Miss, sorry, Yes. did you ask us something? We couldn't hear you. Okay, I am asking you guys, have you started doing a research? Aryaveer is there. Aryaveer, have you started doing research for the documentary? Yes, ma'am. Okay, please can you share what are you doing with Mumtaz? Right now, I went on the website of the NGO
I got some information from there, and I'm working on scheduling a meeting with my nanny for the interview. Okay, okay. So basically, Aryavir is going to make a documentary on her nanny. She's running one NGO. NGO का नाम बताइए आप, आर्यवीर. Yasham. Aryavir, please can you name your NGO, Nani's NGO? Yasham. Mumtaz, have you heard? No. Okay. Please can you repeat? Aryavir? Okay, it's called Yasham. Yasham करके एक इनके नानी का NGO है. They are working for एजुकेशन के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं. जैसे आर्यवीर भी जब भी उन्हें छुट्टी का समय मिलता है, ही इज कनेक्टिंग विद द अंडर प्रिविलेज किड्स. उन्हें वो मैथ्स और साइंस खुद पढ़ाते हैं और गए 1 साल से वो ये एक्टिविटी कर रहे हैं एंड ही हैज सीन द चेंजेस इन दोस लाइक कम्युनिटी स्टूडेंट्स की जिन्हें नहीं समझ में आता था. नाउ उनके मार्क्स भी बढ़ गए, उन्हें समझ में भी आने लगा है मैथ्स. और सबसे बड़ी बात है कि आर्यवीर के एज के ही बच्चे हैं वो. सो ही इज हेल्पिंग दो स्टूडेंट्स. सो ही चोज दैट टॉपिक फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री. एंड पुष्टि इज देयर. पुष्टि चोज अ फैशन वर्ल्ड में किस तरीके से स्ट्रगल है, सर्वाइवल किस तरीके से होगा इन इसमें पुष्टि. एंड हेलो पुष्टि. Pushti? Yeah, please can you brief your subject of documentary over here? Please can you give a brief to Mumtaz? Yeah, so basically we're gonna like look at like the struggles in the fashion industry and how to like overcome them and things like that. Okay, have you started talking to anyone for the research? No, so we're gonna have like a talk on Tuesday or something. Okay. Yeah. So they are working on research. Mumtaz, I just want to ask you how. Please can you explain एक आप कोई केस ले लीजिए, केस स्टडी आपका जो रिसर्च से रिलेटेड हो और किस तरीके से आपने वो प्रॉब्लम टैकल किया है एंड किस तरीके से फील्ड वर्क किया है. वो हमें जानने में बहुत एक अच्छा एस्पेक्ट हमें मिल सकता है. सो प्लीज कैन यू शेयर one case story or case study you have dealt with? ओके, सो हमारे जो फेलोशिप का प्रोग्राम है उसमें हमारी एक फेलो है श्रुति, जिसने ईव टीजिंग के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. और उसका विषय ही इसलिए उसने वो चूज किया था क्योंकि आए दिन लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है, फिर वो काम की जगह है, मार्केट है, कहीं पे भी है. और इसमें उसने लड़कियों का ग्रुप तैयार किया था. और जैसे मैंने कहा कि वो जो है पीएल चेंबूर का ही इलाका है, पीएल लोखंडेमाल उसी कम्युनिटी से आती है. तो उसने पहले रिसर्च किया था कि कहाँ पे अनसेफ लड़कियों को लगता है, वो कौन सी जगह है जहाँ पे अनसेफ उन्हें लग रहा है. तो फिर उसने मार्केट प्लेसेस ढूंढे थे, टॉयलेट ढूंढे थे, जो सबवे है और क्या कहते हैं उसको, फ्लाईओवर है. ये जो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ ज़्यादा तौर पे छेड़छाड़ होती है. और उसने कुछ चीज़ें जाकर देखी थी कि जैसे वहाँ पे लाइट है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ फिल्म बना के क्या होगा, तो हमारे कुछ डिमांड भी होने चाहिए ताकि जब हम लोगों के सामने लेकर जाए तो वो फुलफिल हो. इस हिसाब से उन्होंने किया था. तो उसमें वो 3 मिनट का ही फिल्म था, बहुत बड़ा नहीं, बहुत ही छोटे इसमें उसने किया था कि कैसे लड़के खड़े होके छेड़छाड़ करते हैं और फिर उसके क्या परिणाम लड़कियों के साथ होते हैं. तो जैसे ये आवाज मेरी यहाँ से आ रहा है क्या? हेलो, हाँ. तो
उसका असर लड़कियों के लाइफ पे क्या होता है, तो उसमें बताया था कि लड़कियां घर से बाहर निकलना कम हो गई है। माँ बाप बहुत जल्दी लड़कियों की इसीलिए शादी करते हैं क्योंकि एरिया सेफ नहीं है। फिर उसने ये देखा कि जब लड़कियां उनके साथ छेड़छाड़ होती है तो उसकी अगर कंप्लेंट करने जाए तो घर वाले उन्हें रोकते हैं, और ना ही पुलिस से सपोर्ट मिलता है क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसे रास्ते से जाते क्यों हो जहाँ पे सेफ नहीं है। यानी सब जगह से उन लड़कियों को ही घर में भेजा जाता है, और बहुत बार फिर लड़कियां पढ़ नहीं पाती है, मेंटली डिस्टर्ब होती है, और हमेशा से वो खुद को दोष देती है कि मैं ऐसी हूँ इसलिए हुआ। तो ये सारे चीजें उसने ढूंढ निकाली थी। उसने एक छोटा सर्वे किया था। उस सर्वे से आई हुई जानकारी को ध्यान में रखते हुए उसने वो 3 मिनट की फिल्म बनाई, और वो उसने जो हमारा जोन 6 है पुलिस का, तो उनके जो डीसीपी है उनके सामने उन्होंने वो प्रेजेंट किया। लोकल एमएलएज और एमपी है उनके सामने उन्होंने प्रेजेंट किया, और कम्युनिटी में छोटे छोटे ग्रुप में एफजीडी के तौर पे वो लोगों के सामने रखा। और उसमें से जो डिमांड उन्होंने रखी थी कि सेल सेफ्टी के लिए लाइट्स होनी चाहिए जहाँ पे लड़कियां जाती है, पुलिस का राउंड अप होना चाहिए, जो पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज के समय होते हैं जब लड़कियां बड़े पैमाने पे बाहर आती है। अगर कोई लड़की पुलिस स्टेशन में जाती है तो वहाँ पे उसका सुनना चाहिए। और ऐसे करके जब उन्होंने ये सभी लोगों के सामने प्रेजेंट किया तो स्कूल के यहाँ पे 2 वक्त में, जब स्कूल में आने का वक्त है और जाने का वक्त है, तब वहाँ पे पुलिस का राउंड अप शुरू हो गया। जितने भी सबवे और हमारे यहाँ पे फ्लाईओवर थे वहाँ पे लाइट्स लग गए। हमने इसमें टाटा पावर जो कंपनी है उनसे भी बात की थी क्योंकि वो हमारे बस्तियों के आसपास थे, तो हमने कहा कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग ही आपकी कंपनी में काम करते हैं। तो उन्होंने सोलर लाइट जो है वो लोगों के सामने दिया। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि जब आप ऐसे सवालों को लोगों के सामने रखते हो तो सिर्फ ना कि सवाल है तो उसके जवाब क्या हो सकते हैं, कौन कौन जवाब देने के लिए जवाबदेही लोग हैं, उनको ढूंढना और उनके सामने रखना, तो वो आसान हुआ। और बिल्कुल उसकी वजह से अभी लड़कियां खुलेआम आ रही है जा रही है। स्कूल में भी उन्होंने कंप्लेंट बॉक्स रखा था। अभी तो कोविड और लॉकडाउन का हो गया, इसकी वजह से इतना वो वर्क नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर कोई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है तो वो कंप्लेंट बॉक्स में लोग कंप्लेंट डालते थे और जिसकी वजह से उनको सपोर्ट मिलता था। पुलिस स्टेशन में जो विजिलेंट कमेटी होती है, कम्युनिटी विजिलेंट कम्युनिटी जो होती है, तो वहाँ पे जो लोकल उन्हीं बस्तियों से आई हुई महिलाएं हैं उनका ज़्यादा आना जाना बढ़ गया, ताकि वो एक प्रेशर भी बना रहे पुलिस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कि ऐसे कुछ होता है तो लोगों को लेना चाहिए। इस तरीके का काम उस छोटी सी फिल्म में किया था। तो ये बिल्कुल अनुभव आपके साथ में शेयर कर। फिर म्यूट पे हो, तुम म्यूट पे हो। Thank you so much, Mumtaz. Imagine, guys, please note down this thing. Whenever you're researching and preparing your question, and put what are the problems. Problems statement क्या है और वो problems रखने के ऊपर उसके ऊपर उनके demands क्या है वो problem solution के. तो please put this in your question and you are mentioning a problem statement and what are the solution for that. That is very important because your one film is going to change a one community, one person's life or a community people's life. ये बहुत जिम्मेदारी है आपके ऊपर एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर कि आप कौन से प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे हो मीना कामले के जरिए और वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, डिमांड्स क्या है. सो इमेजिन व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर समवन विथ वन डॉक्यूमेंट्री फिल्म, भले वो 3 मिनट की हो. That is see the power whatever you're creating now. So it's a like बहुत अच्छा एक केस स्टडी मुमताज आपने हमें बताया. मुझे ये जानना है कि you're working for a domestic violence जो कोविड के टाइम पे बहुत उसका रेशो बढ़ गया है. प्लीज कैन यू शेयर योर इनसाइट्स ऑन दिस कि आप
ये डोमेस्टिक वायलेंस किस तरीके से टैकल करते हो, कितने केसेस आपके पास आए हैं और किस अलग अलग सेक्शन से आप उसे फोकस कर रही हो, अच्छे तरीके से लाइन अप करके उस पे काम आपका चालू है. प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस. श्योर। और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आपने ये पूरा सुनने के बाद अगर आपको लगे कि इस प्रोग्राम के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो वेलकम, उस हिसाब से शेयर करती हूँ। एक तो ये है कि पिछले 25 सालों से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को लेकर हम काम कर रहे हैं और पिछले 5 सालों से हमने एक कोशिश की है कि आप सभी को पता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या स्थिति है, क्योंकि कभी भी केसेस कम नहीं हुई है, वो बढ़ती जा रही है और बहुत अलग अलग तरीके से बढ़ती जा रही है। तो हमने ये सोचा कि जो भी हमारा अनुभव रहा है कि हम काउंसलिंग सेंटर चला रहे हैं, काउंसलिंग सेंटर की ओर से हमने अभी तक कुछ 10,000 से ज़्यादा केसेस डील की है, डोमेस्टिक वायलेंस की, रेप केसेस की। ये एक अनुभव रहा। एक तरीके से देखा जाए तो काउंसलिंग सेंटर है, अवेयरनेस हो रहा है, अलग अलग कानून आ रहे हैं, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस कम नहीं हो रहा है। तो इसका क्या रीज़न है, ये ढूंढने की हमने एक कोशिश की और उसमें हमें ऐसे लगा कि अभी हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत ऊपरी तौर का है, कि जैसे आपको अगर कहीं पे जख्म हो जाती है, कहीं पे मार लग जाती है, तो हम सिर्फ ऊपर से मलहम पट्टी करते हैं, लेकिन वो जड़ क्या है वो नहीं देखते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस जड़ को देखें, और इसकी जड़ क्या है तो सोशल नॉर्म्स जड़ है, कि जो आपको सिखाते हैं कि महिलाओं ने क्या करना चाहिए और पुरुषों ने क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो हमेशा से औरतों को ये सिखाया जाता है कि आपको बर्दाश्त करना है, जो भी है आपका हस्बैंड है, अगर वो आपको मारता है, पीटता है, आपको बर्दाश्त करना चाहिए, घर की इज्जत घर में रहनी चाहिए। और लड़कों को सिखाया जाता है कि आपको कमा कर लाना है, आपको रौब जमाना है, आपको मारपीट करनी होगी, अगर आपकी बीवी को आपको कंट्रोल में रखना है तो ये सारी चीजें करनी होगी, क्योंकि आप घर का चिराग हो, आप घर के मेन हो। तो ये जो जेंडर वाला जो मुद्दा है, जो समाज ने तैयार किया हुआ मुद्दा है, उसके सच कहूँ तो हम सभी विक्टिम हैं, क्योंकि बचपन से हमें वैसे ही सिखाया गया है और हमने हमारे घरों में भी वही देखा है कि अगर हमारे पिताजी हमारी माँ को पीटते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हाँ, पुरुष मारने वाला है और औरत मार खाने वाली है। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे घरों में हमारी माँ ही सभी की देखभाल कर रही है, घर का काम कर रही है और पिताजी जो है वो बाहर कमा के ला रहे, तो हम भी यही सीखते हैं कि अगर मैं लड़की हूँ तो मुझे घर का काम करना चाहिए और मेरा भाई जो है वो बाहर कमा के लाएगा। या फिर एक बहुत ही छोटा सा अगर उदाहरण दूं, तो अगर बड़ी बहन को भी बाहर जाना होगा तो हम छोटे भाई को साथ में भेजते हैं कि दीदी जा रही है उसके साथ चला जा, ताकि वो रक्षक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो दिमाग में आता है। सच को तो वो 5-6 साल का बच्चा 10-12 साल की लड़की के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन कंसेप्ट ये है कि महिलाओं को सुरक्षा देने वाले पुरुष है। तो ये सारे करने के लिए जो नॉर्म्स है ना, अगर अभी आप सभी लोग रिसर्च करने वाले हो, सभी लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले हो, तो थोड़ा सा अगर हम पीछे पलट कर देखें तो हमारे जितने भी सॉन्ग है, हमारी जितनी भी गालियां है, हमारी जितनी भी कहावतें हैं, इसमें सारी चीजें नॉर्म्स ही बताते हैं। हाँ, या फिर हम जैसे रवीना टंडन का तू चीज बड़ी है मस्त मस्त सुन के हम औरतों को चीज है ये बताते हैं पब्लिकली, और वैसे ही तू किसी और की ना होगी तो मुश्किल हो गया, अगर तू मेरी नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन किसी और की होगी तो प्रॉब्लम होगा। और औरतें भी कहती है कि भला है बुरा है मेरा पति मेरा देवता है। हाँ, इस तरीके के सॉन्ग हमारे जगह पे हमें हमारे दिमाग में डाले जाते हैं। थ्रू आउट सारी सीरियल अगर हम देखें, सारे सिनेमा हम अगर देखें, तो औरत ही औरत की दुश्मन है ये दिखाया जाता है। लेकिन जो पैट्रियार्की है, जो औरतों को इस तरीके से काम करने लगाती है, इसको कोई नहीं देखता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक पिछले 6 सालों से इन 14,000 घरों में एक एक्सपेरिमेंट किया है
कि 350 घरों के जो हाउस होल्ड है, 350 हाउस होल्ड, उसमें हम एक कम्युनिटी केस रजिस्ट्रेशन सेंटर चलाते हैं, जो कि पूरी तरीके से कम्युनिटी से आई हुई महिलाएं जो खुद भी शायद वायलेंस का सफर उन्होंने किया हो, उसमें से आई है, जो अभी लीडरशिप कर रही है। ऐसी महिलाएं अपने घर में ही वो सेंटर चलाते हैं। हमारे कोई ऑफिसेस नहीं है, हमारे 2 ही ऑफिसेस है, लेकिन कम्युनिटी में हम कम्युनिटी केस रजिस्ट्रेशन सेंटर उन्हीं महिलाओं के घर से चलाते हैं, जहाँ पे रजिस्टर होता है, उनका बोर्ड होता है, फोन नंबर होती है। कंसेप्ट ये है उसमें कि कोई भी महिलाओं को किसी भी तरीके का वायलेंस हो, किसी भी तरीके का टॉर्चर हो, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, उन्होंने आके उस सेंटर की महिलाओं को बताना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं बहुत सालों तक बर्दाश्त करती है कि क्योंकि उनको कोई ऐसे भरोसे वाला व्यक्ति नहीं होता है कि जिनको जाकर वो बता सके कि मेरे साथ गलत हो रहा है। क्योंकि बहुत बाहर ऐसा होता है कि महिलाएं अगर कुछ जाके बताती है, मानो फॉर एग्जांपल किसी सहेली को उसने बताया कि उसके घर में ये दिक्कत है, कल को अगर उसके सहेली के साथ कुछ अनबन हो जाती है, तो सबसे पहले वो सहेली जाके लोगों को बताती है कि इसका ये प्रॉब्लम है। तो वो भरोसे वाली चीज नहीं होती है। तो इस प्रोग्राम के जरिए हमने कम्युनिटी में ही इकोसिस्टम तैयार किया है, जो कि इन महिलाओं को राहत देता है। दूसरा, हम फैमिली यूनिट के साथ काम करते हैं। वो 350 घरों में जितनी भी फैमिली के लोग हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, यूथ है, इन चारों के साथ हम काम करते हैं मतलब हम उनका ट्रेनिंग करते हैं कि माइंडसेट कैसे चेंज हो, जेंडर क्या है, वायलेंस क्या है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। अलग अलग कैंपेन हम करते, फॉर एग्जांपल हमने आवाज दो नाम की कैंपेन की थी, जिसका मकसद ये था कि किसी के साथ भी अगर हिंसा हो रही है, तो जिसके साथ हिंसा हो रही है उन्होंने भी आवाज देनी चाहिए, और जो हिंसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने भी उसको सपोर्ट के लिए आवाज देनी चाहिए। और ये सारी चीजें हम कम्युनिटी में लेके जाने के बाद अब पिछले 5 सालों का अगर हम अनुभव ले, तो अभी ये दिखाई दे रहा है कि इन 5 सालों में हमने 5000 से ज्यादा केसेस हैंडल की है, जो कम्युनिटी में होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है। कम्युनिटी के जो बाकी के सवाल है, पानी है, लाइट है, गटर है, उसके सवाल है, उसको हमने डील किया है। इन सारे 11,000 मुंबई के और बाकी के महाराष्ट्र के अगर हम घर देखें, 14,000 घरों में महिलाओं की लीडरशिप तैयार हो रही है। दूसरा, हमने इसमें जो यूनिक चीज की है कि हमने कम्युनिटी में टास्क फोर्स तैयार किए हैं, जो कि कम्युनिटी में रहने वाले एडवोकेट है, डॉक्टर है, टीचर है, क्योंकि हम मुस्लिम और दलित कम्युनिटी में काम करते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी में जो मौलाना है, ऐसे सारे लोगों को हमने साथ में लिया है, और उनके द्वारा हम कम्युनिटी में मैसेज दे रहे हैं कि हिंसा गलत है। और ये जो ऐसा होता है ना कि फैमिली मैटर है, तो वो उनका पर्सनल है, तो हम ये कहते हैं कि कोई भी मैटर पर्सनल नहीं होता है, तो जो गलत हो रहा है उसको वहीं पे रोकना चाहिए। और अभी इन सारे, जैसे मैंने केसेस की संख्या आपको बताई, कम्युनिटी में लीडरशिप तैयार हो रही, ये हमने देखा। जितने भी त्योहार है, चाहे वो रक्षाबंधन हो, होली हो, ईद हो, दिवाली हो, इन सारे त्योहारों को हमने फिर से रीजनरेट किया है। कि जैसे अगर होली है, तो हमने गालियों की होली जलाई है, कि ऐसे कहा जाता है कि जो भी हमारे जो उस त्योहार की खासियत है कि हमारे साथ जो भी गलत होने वाला है, वो इस आग में जल जाए और खत्म हो जाए। तो हमने औरतों से, क्योंकि सारी गालियां जो है वो औरतों के लैंगिकता से जुड़ी हुई है, माँ पे, बहन पे, औरत पे, और सारी गालियों में औरत को ही प्रदर्शित किया गया है, औरत के अंगों को ही दिखाया गया। तो हम गालियों की होली करते हैं। जब दिवाली आती है, तो जो रंगोली हम निकालते हैं वो हमारे मैसेजेस होते हैं कि संविधान का प्रचार कैसे हो, इसकी हम रंगोली करते हैं। या जितने भी पॉजिटिव हमारे मैसेजेस है, उसका हम कंदील बनाते हैं, जो कम्युनिटी में लगाया जाता है। जब रमजान शुरू हो जाता है, तो हम दलित कम्युनिटी के जो भाई बहन हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए त्योहार की तैयारी करते हैं। वैलेंटाइन डे को तो हमने हर एक के साथ मनाया है, चाहे वो बच्चा हो,
चाहे वो बूढ़े हो, सिर्फ हस्बैंड वाइफ या सिर्फ प्रेमी प्रेमिका ही नहीं, तो सास बहू ने वैलेंटाइन डे मनाया है, ननंद भाभी ने बनाया, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ये हमेशा तकरार वाले रिश्ते दिखाई देते हैं कि ननंद भाभी है तो झगड़ा होगा ही, सास बहू है तो झगड़ा होगा ही। तो ऐसा नहीं है, कम्युनिटी में हमने देखा है कि माँ बेटी का रिश्ता उनका होता है, लेकिन थोड़े से अनबन होने की वजह से जिंदगी भर के लिए वो दूर चले जाते हैं। तो इस तरीके के हमने किए। फ्रेंडशिप डे को हमने हर एक के साथ मनाया है कि वो सिर्फ दोस्ती का रिश्ता हम दोस्तों के साथ ही क्यों करें, माँ बेटी का दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का दोस्ती का रिश्ता हो सकता है। तो डायलॉग हमने इन कम्युनिटी में बढ़ाने की कोशिश की है। तो इस तरीके का ये पूरा प्रोग्राम है जो हमने मुंबई में, अहमदनगर में, नासिक में, विदर्भ में, तो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है और ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आने वाले कुछ दिनों में हम उसका डिसेमिनेशन भी करेंगे कि, और हम शायद को बता पाएंगे कि अगर वॉयलेंस कम करना है तो सिर्फ एक चीजें करके नहीं होगा, मल्टीपल चीजें आपको बार बार करनी होगी, तब जाके कहीं वॉयलेंस कम होगा। Okay, thank you so much, Mumtaz, because the way you shared so many information, उस हर एक टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन सकती है। My next question is कि ये जो बच्चे हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, तो इन्हें आप कौन सी सजेशंस दोगे कि किस तरीके से इन्हें वो टॉपिक को किस नजरिए से देखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बोलते तो एक ड्राइव एकदम बोरिंग सा कुछ देखने वाले ऐसा फीलिंग आता है। सो प्लीज कैन यू गिव अस सम टिप्स कि वो इंटरेस्टिंग कैसे बनाए डॉक्यूमेंट्री उनकी, और किस चीजों को इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट से देखें। एज अ सोशल फील्ड वर्कर यू शुड नो कि किस तरीके से वो प्रेजेंट कर पाएंगे ये जो बच्चे हमारे हैं, तो उसके कुछ टिप्स अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि मैंने पहले 2 सवालों में भी काफी सारी चीजें बताई है। बस Yes. ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी बनाए, जिसके लिए बना रहे हैं उसको लगना चाहिए कि ये उसका है, वो उसकी नजर से होना चाहिए। वो आपकी नजर से अगर होगा तो मुश्किल होगी, कनेक्शन नहीं जुड़ पाते। बहुत बार ड्राई क्यों लगती है डॉक्यूमेंट्रीज, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं लगता है कि मेरा और उस फिल्म का क्या कनेक्शन है। अगर मैं उसमें नहीं हूँ, हाँ मैं यानी मैं नहीं, लेकिन जो भी है वो अगर उसमें नहीं है तो उसमें मजा नहीं आता है। तो वो एक होना चाहिए। दूसरा कि जिनकी भाषा में है वही भाषा हमने यूज करनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना कि लोग लैंग्वेज को बहुत ये करते हैं, और मुझे लगता है कि लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। और जब वो जिनके सवाल है या जिनकी डॉक्यूमेंट्री है उनका जब आवाज उसमें आती है तो वो बहुत मायने रखते। भले आप फिर उसका क्या कहते हैं सबटाइटल आप अपनी जो भी भाषा में डालना है आप उसमें डालिए। हमने जो भी अभी तक फिल्म बनाई है तो उसका वॉइस ओवर जो है वो कम्युनिटी के लोगों ने ही किया है। तो वो एक मजा होता है कि जब आप लोगों के सामने जाते हो तो कम्युनिटी की ही कोई बंदा या बंदी उस पूरी फिल्म की कहानी बता रहा है, तो लोगों को सुनने के लिए अच्छा लगता है। लोगों को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है, और उस कहानी में भी अगर हम देखें कि वो कहानी भी ऐसे प्लेन नहीं होनी चाहिए। जब क्योंकि लोग जब बताते हैं तो उनका काय म्हणतात त्याला, मैं शब्द जरा ढूंढती हूँ, आर्टिकुलेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है। उसको हम कैसे पकड़ पाए वो बहुत जरूरी है। ये 2-3 चीजें मुझे लगती है कि जब हम फिल्म बनाते हैं तो उसको ध्यान में रखने की जरूरत है, ताकि वो और जिंदा लगे, और लोगों को लगे कि वो उनके लिए तैयार की हुई है। बस। और अगर इसमें आप लोगों का सहभाग जितना लेते हो उतना ज्यादा वो और अच्छी बन पाएगी, ऐसे मुझे लगता है। पूनम, शायद वो लेफ्ट हो गई है।
किसी के कोई सवाल होंगे या कुछ पूछना होगा तो बिल्कुल पूनम ज्वाइन करने तक पूछ सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है और जो इंटरव्यू कर रहे हैं उन्होंने ठीक से आंसर नहीं किया है, तो क्या हमें क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए या दूसरे वे में आस्क करना चाहिए? मुझे लगता है कि क्वेश्चन को अगर वो बहुत ज़रूरी है आपके फिल्म के लिए तो उसको स्किप नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि शायद ऐसा हो कि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बहुत बार क्या होता है ना कि सवाल लोगों के समझ में नहीं आते हैं और फिर वो अलग तरीके से आंसर देते हैं। आप ऐसे कर सकते हो कि उनको बोलने दें, जो भी फॉर एग्जांपल कि आपने समझो आपके जो स्कूल के बच्चे हैं उनको लेकर आप कर रहे हो, तो उनका क्या अनुभव रहा है, इतना आपने उनको पूछा, तो वो सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि मैं स्कूल में आया, मुझे अच्छा लगा और ये मेरा अनुभव है। वो बहुत सारी चीजें बताएंगे। वो शुरुआत से बताएंगे कि मुझे कैसे यहाँ पे लाया, फिर वो दीदी ने कैसे बुलाया, फिर वो अंकल कैसे हमें बता रहे थे, फिर हमारी मैम ने हमें क्या सिखाया, फिर मैं जाते जाते मैंने क्या किया, मैंने कैसे बताया। वो पूरी आपको स्टोरी बताएगा। फिर वो आपकी एक्सपर्टीज है कि उन्होंने जितनी सारी चीजें जो बोली है उसमें से आप अपने मतलब की चीजें कैसे निकालते हो। क्योंकि हमारी अपेक्षा ये होती है कि जैसे हम हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है ना कि ये सवाल है, उसका 1 लाइन में आप आंसर लिखो। तो बहुत बार 1 लाइन में हमें आंसर नहीं मिलता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि उन्होंने जो भी शुरू किया है वो कैसे आर्टिकुलेट करते हैं और उसमें से क्या चीज़ें निकलती है, वो ज़्यादा ज़रूरी रहता है। थैंक यू। Pushti, do you have any questions to ask? No, miss. All right. हेलो, हाय मुमताज जी। जी हाँ, एक्चुअली पूनम का इंटरनेट का इशू है आई गेस, बिकॉज इसके लिए शायद वो ज्वाइन हो। नहीं कर पा रही है वो। हाँ, तो क्या करें, क्या सजेशन है आपके आगे? एक मिनट, मैं उनसे बात कर देती वो कनेक्ट कर रहे हैं। हूँ। I'm so sorry. My phone got switched off. I'm so sorry. It's okay, Poonam. Okay. So, Mumtaj, my next question to you is कि ये जो बच्चे अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के अलावा इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कैसे दे, जो सोशल नॉर्म से रिलेटेड है या पॉलिटिकल चीजों से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल पुष्टि इज डूइंग फॉर अ फैशन टॉपिक पे, वो सर्वाइवल कैसे हो, तो उस टॉपिक पे वो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली है। तो अभी तक हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि फैशन मतलब पैसों वाले लोग वहां पे रहते हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं। सो ये जो एक सोच है, लाइक कि हम जैसे फैशन को ट्रीट करते हैं, वी कंसिडर एट्स अ काइंड ऑफ अ ग्लैमरस इंडस्ट्री। तो उसके उसे अगर वो टॉपिक कवर करना है तो कौन से एंगल्स वो वहां पे रखेंगी? इट विल हेल्प फॉर हर, लाइक पुष्टि अगर फैशन पे कर रही है तो, because she's already interviewing so many people she knows around her and उनकी struggle stories और वो questionnaire उन्हें पूछने वाली है। Do you have any like suggestions for her? मुझे क्या लगता है इसमें कि मुझे पता नहीं कि पुष्टि उसमें से जैसे मैंने पहले कहा कि वो क्यों करना चाहती है और कौन से इश्यूज वो सामने लाना चाहती है, वो बहुत ज़रूरी है इसमें। और दूसरा कि जैसे आपने कहा कि
फैशन इंडस्ट्री को लोग बहुत अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन उसमें कहीं पे भी जो वहाँ पे काम करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए बहुत बार रिस्पेक्ट नहीं होता है। हाँ, उनको बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, ये भी एक नॉर्म्स है, क्योंकि हमने चैरिटी शो किया था, उसका एक अनुभव है, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन उस चैरिटी शो में हमने देखा था कि जो रैंप वॉक होता है उसमें जो लड़कियां थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ब्रांड का फैशन शो था, तो उसमें उस तरीके, लेकिन जब हमने देखा, क्योंकि हमें उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम तो क्या एनजीओ वाले हैं, तो उन्होंने हमें एक जगह पे बिठाया, तो जहाँ से हम ये सारा देख रहे थे, तो वहाँ पे जो लड़कियां थी, मतलब बाहर जितना जिस तरीके से वो रैंप वॉक कर रही थी, वहाँ पे जो तालियां और वो सारे मिल रही थी, लेकिन जब वो वापस चेंज के लिए आ रही थी, तो किसी भी तरीके का जो कहते हैं ना कि एक बंद कमरा होना चाहिए जहाँ पे वो रिस्पेक्ट के साथ कपड़े चेंज करे और वो दोबारा से रैंप वॉक पे जाए, तो ऐसे कोई सुविधा उनके लिए नहीं थी। तो मुझे इतना वो बुरा लगा कि मतलब ये इतने पैसे कमाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई भी आ सकता है, वो देख सकता है, तो वहाँ पे कहीं पे रिस्पेक्ट मुझे दिखा नहीं। दूसरा, मुझे ऐसे लगा कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं, कि बस वो ब्रांड का नाम है, लेकिन वहाँ पे काम करने वाली लड़कियाँ, उनकी सेफ्टी का मुद्दा होगा, उनकी डिग्निटी का मुद्दा होगा, ये वहाँ पे कहीं पे भी नहीं था। तो मुझे जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे पता नहीं कि वो उनमें से क्या दिखाना चाहते हैं। स्ट्रगल सिर्फ इसका नहीं होगा कि वो मेहनत कर रही है और वो आगे जा रही है, तो यहाँ के सवाल क्या है ना, इस इंडस्ट्री के सवाल क्या है, क्या इश्यूज है, और वो लोगों के सामने हम कैसे ला सकते हैं, इस तरीके से अगर वो देखते हैं, तो ये 2-3 चीजें जो मुझे दिखाई दी, जो मेरा अनुभव रहा, वो मैं मतलब हर एक चीज में तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये चीजें मुझे उस वक्त दिखाई दी थी, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। होप उनसे उन्हें कुछ पुष्टि जी को कुछ फायदा हो, या नहीं भी हो सकता है, पता नहीं। जरूर, आई डोंट या ये मैंने सोचा ही नहीं मुमताज, बिकॉज आई हैव बीन कवरिंग लैक्मे फैशन शो, एंड यू आर राइट, देयर इज नो एनी प्रॉपर रूम फॉर द गर्ल्स एंड वुमेन कि दे कैन चेंज, जहाँ पे वो वैसे ही चेंज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एड्रेसिंग दिस इशू पुष्टि। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड you can incorporate Yeah, with your assignment. Okay, yeah, yes, do you find it's interesting topic? yeah, of course. Like, it's pretty Yes. interesting. Yes. Mumtaz, guys, do you have any question? We are taking a question from you. Aryavir, please have a उन्होंने question. पूछा है। Aryavir, Miss, I already asked. हाँ, पूनम आप जब लेफ्ट हुए थे ना, तो उन्होंने सवाल अच्छा. पूछा था। Okay. Ramsha, do you have any question to ask Mumtaz? Ramsha? Okay, maybe she is. Okay, so we'll take a last question and we'll end up the session, because it's already 1 hour and Mumtaz is about to like she has some meeting after the session, so we should try to wind up in 10 minutes. Okay, Mumtaz, please can you the last question is कि आप इन्हें क्या कहना चाहोगे लास्ट, अगर कुछ बताना है आपको कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये किस तरीके से वो सेंसिटिव मुद्दा हैंडल करे, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आप गलत तरीके से सवाल ना पूछ बैठो, तो सेंसिटिविटी के साथ काम करना, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, और फील्ड पे काम करना करने के एक 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आप बता दो, तो कि किस तरीके से इन्हें खुद के सब्जेक्ट को एंड सब्जेक्ट मैटर को हैंडल करना चाहिए. व्हाट आर द 5 टिप्स यू वांट टू गिव? एक तो ये है कि हमें हमेशा लर्निंग मोड में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ पे भी जाओगे आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, और आप स्टूडेंट बन के ही जाइए। मैं भी भले मैं 20 साल से काम कर रही हूँ,
मैंने खुद भी सारी चीज़ें की, लेकिन मैं हर वक्त सीखती रहती हूँ। तो एक तो स्टूडेंट के रोल में हमेशा होना चाहिए, लर्निंग मोड में हमेशा होना चाहिए। दूसरा कि मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी अजम्पशन लेके आप मत जाइए कि ये कम्युनिटी के लोग हैं, या अगर पुष्टि फैशन वर्ल्ड में जा रही है तो वो फैशन वर्ल्ड के लोग हैं, तो वो तो ऐसे ही रहेंगे, ये तो ऐसे ही सोचेंगे। तो किसी भी तरीके का अजम्पशन आप मत रखिए। और जैसे आर्यवीर जी का भी सवाल था कि हम सवाल को पूछते हैं और सामने वाला आंसर नहीं देता है तो क्या हम स्किप करें। तो आपको ज़रूरी क्या है, भले आप 50 सवाल निकालो, लेकिन कौन से 5 सवाल ऐसे होंगे कि जिससे आपकी डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनने में आपको मदद मिलेगी, ये आप बिल्कुल वहाँ पे सोचिए। बहुत बार क्या होता है ना, हम क्वेश्चन करते हैं लेकिन उसको सब क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो भी हमें जानकारी नहीं मिलती है। तो वो सब क्वेश्चन क्या होंगे उसको बिल्कुल दिमाग में आप रखिए। तीसरा कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर फ़िल्म जो है वो धमाका ही करे। हाँ, बहुत बार ऐसे हो सकता है कि अ, वो ठीक से काम ना करे या जिस तरीके से हम चाह रहे हैं उस तरीके से ना हो, तो मायूस मत होइए। हाँ, या फिर आप गए हैं किसी एक विषय को लेके और उस विषय में आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप मायूस होके वापस आए। तो आप देखिए कि उसमें से और कौन-सी चीज़ें आप नए से कर सकते हैं, और वो पॉज़िटिविटी जो है, वो आप साथ में कैसे रखें। दूसरा कि आप जब भी महिलाओं के साथ काम करें, तो बहुत ज़रूरी है कि हम सेंसिटिव रहना। मैं बिल्कुल ये मानती हूँ, और भले ही आप पुरुषों के साथ भी काम करें, तो सेंसिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ये 4-5 चीज़ें हैं, क्योंकि आप फ़िल्म मेकर हैं, सोशल वर्कर हैं, टीचर हैं, कोई भी है, उससे ज़्यादा है कि आप इंसान हैं। और जब हम इंसान हैं, तो सामने वाले इंसान को उतनी ही डिग्निटी के साथ हम उनके साथ काम करेंगे। तो आप कोई भी काम करने जाइए, आप कभी मायूस होकर नहीं आएँगे। ये मेरा अभी तक का अनुभव रहा है। और जितने मौके मिलते हैं, वो मौके हम कैसे ले पाएँ। भले आप कम्युनिटी में आप जब एक मैं बात बता दूँ कि आप जब भी कम्युनिटी में जाएँ ना, तो आपको हज़ार सवाल मिलेंगे। हाँ, हज़ार मौके मिलेंगे, हज़ार चीज़ें आपको दिखाई देगी कि जिसके ऊपर जैसे पूनम का एक सवाल है कि कितना कंटेंट है। हाँ, वो कंटेंट को लेके आपको क्या करना है और उसका बदलाव की दिशा में लोगों के लाइफ में कैसे चेंज होगा, लोगों के माइंडसेट में कैसे चेंज होगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक के बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, बड़े-बड़े अवार्ड लेकर गए, लेकिन उन्होंने कभी पीछे पलट के ये नहीं देखा कि जिनके वजह से वो इतने आगे गए हैं, उन कम्युनिटी के लोगों का क्या हुआ है, उन उस सवाल का क्या हुआ है, वो सवाल वहीं पे है, सवाल छूटा है, नए सवाल आए हैं, तो कोई मुड़कर नहीं देखता है। और हम बस उसमें खुश हो जाते हैं कि मैंने ये किया, बस बात खत्म। तो उसको ध्यान में रखें। इतना ही कहूँगी, बहुत ज़्यादा बोल दिया, सॉरी। No, Mumtaz, you have just made a very important integral like point over here. Like कि हम लोग एक टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं, लेकिन उसके आगे क्या हो गया, उसके बाद जो फॉलो अप रहता है वो लेते नहीं है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स शायद प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही रहते हैं, सॉल्यूशन पे नहीं आते. बट इट इज अ रियली गुड पॉइंट यू हैव जस्ट पुट इट ओवर हियर. जैसे एग्जांपल गाइस, यू कैन मेक अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री फॉर योर टॉपिक, कि एक डॉक्यूमेंट्री बन के आपको रुकना नहीं है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, कौन से डिमांड्स है, फुलफिल हुए या नहीं हुए, वो प्रॉब्लम्स अभी भी है, बढ़ गए हैं, एक फॉलो अप डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है. सो दिस इज प्लीज एड ऑन टू योर लिस्ट कि यू कैन मेक अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री सीरीज फॉर योर टॉपिक. So it is a really good suggestion, Mumtaz, you have just put it over here. And I just want to thank you that you have given time for us, and I'm so happy that we all know that you're an inspirational person in general,
and I'm glad that I know you. You touched my life, and I hope कि हमारे बच्चों में से कोई आपसे जल्दी मिल पाए, रूबरू हो पाए, and we'll have a great conversation in one-on-one matter, one-on-one conversation हो. But thank you so much for your time and kind words. I'm truly glad for this. Thank you so much, Mumtaz. थैंक यू पूनम। और बिल्कुल आप जब भी जिससे भी मिलना है आप मेरा कांटेक्ट नंबर उन्हें दे सकते हो पूनम, हम कभी भी मिल सकते हैं। आप बिल्कुल कम्युनिटी में आइए, अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प किसी भी लेवल पे चाहिए होगी तो बिल्कुल हम करेंगे। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आज मैं एक अलग तरीके के बच्चों के साथ बात कर रही हूँ जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं, वो समाज में बदलाव लाने की पहल की दिशा में आप लोग सब आए हो, तो सभी को ऑल द बेस्ट। मैं आप सभी को देख नहीं पाई हूँ, लेकिन होप आप हम नेक्स्ट टाइम बिल्कुल देख पाएंगे, मिल पाएंगे। और पूनम थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे आने का और बात रखने का मौका दिया। Always Mumtaz for you, whatever like opportunities I'll seek, and I'm always glad ki having you for a more and more conversation for Artist 360. Thank you so much. Guys, you want to share anything? Aryabir, Pushti? Hello. No, miss, I don't have anything to share. Okay. So we can leave now, and thank you so much, Mumtaz, for your kind words. I'm calling you after the session. Just do let me know how was it, and thank you so much for your patience, students. And Aryabir, I'll have a conversation with you by tomorrow, okay, for a pre-production and other aspect of the films. मैं जाऊँ? Thank you so Yes, much, yes. Mumtaz ji. Thank you so Thank much you, for thank you. supporting. Bye, Thank you. bye. Thank Bye, you. bye. Thank you. Yeah. Yes.